Okay, so our first topic is CTM, which is like, yeah, the part of skincare routine. All right, then we move to brushes and tools, which is like again a very basic topic. Then we move to undertones, skin tones, which are actually used to find out the foundations according to different person. I hope you are comfortable with me talking in English. कोई issue है तो मैं हिंदी में switch कर सकती हूँ. Okay, all right. Then we move to corrections and concealing, which is actually for neutralizing the uneven areas of your face. Yeah, exactly. The pigmentation or dark circles, which means uneven areas. All right. Then we go to face and eye shapes. Why do we study face or eye shapes? Yeah, exactly. Yeah. Since every person has a different face shape, the contouring, highlighting and blush application will also be different according to a person's face shape. All right. And eye shapes? Yeah. Actually, whenever we put eyeshadows, we choose shades according to a person's eye shape. अगर हम बाहर डार्क एरियाज यूज कर रहे हैं, अंदर लाइट यूज कर रहे हैं या सेंटर में लाइट यूज कर रहे हैं, तो वो इफेक्ट करता है कि किसी की आई शेप कैसी है. किसी की आईज छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, किसी की अपलिफ्टेड है. अपलिफ्टेड मीन्स कि आउटर कॉर्नर से थोड़ी सी you can say that is actually a different you're talking about. We will discuss that in the eye shapes part. Then we have again contour, highlighting and blush application. Then we have lipstick shades, like सबके स्किन टोन के अकॉर्डिंग डिफरेंट लिप शेड सूट करते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे. देन सेटिंग अप द मेकअप, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू अ क्लाइंट्स डिजायर वेदर ही और शी वांट्स अ ग्लोइंग मेकअप और अ मैटिफाइंग, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिज और हर स्किन टाइप, लाइक ऑयली और ड्राई. Then we have different types of eye makeups. After that we have portfolio makeup. This is some of the points are just to read, okay, for you all. And then we have portfolio makeup, which is actually used for models, which since they have very flawless skin, we do not need to put so much of makeup and hide. Yeah, exactly. Since they do not have any flaws, why do we have to put so much of makeup on them? All right. And you must have seen in the serials as well. सीरियल्स में जब भी आप किसी को देखते हो, उनके मेकअप ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा हुआ हुआ है, बट अगेन हाँ, एग्जैक्टली, वेरी नेचुरल. बट होता है, ये हमें भी पता है, ये उनको भी पता है, बट अगेन वो एग्जैक्टली न्यूड मेकअप टाइप. देन मेन मेकअप इज मोर अबाउट स्किन केयर्स एंड लेस अबाउट प्रोडक्ट्स. Then mature skin makeup, which is actually a little different from what we do on young skin. Like हम यहाँ जितने बैठे हैं, हम सबकी यंग स्किन है. मेच्योर स्किन इज जब रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं. ठीक है, रिंकल जरूरी नहीं है कि आप इमेजिन करो कि 60-70 की एज में रिंकल्स होंगे. हो सकता है कि हाँ, किसी के 30-40s में भी जल्दी रिंकल्स. ये उन लोगों के जल्दी आते हैं जिनकी स्किन सॉफ्ट होती है काफी. व्हेनेवर यू आर डूइंग आई मेकअप, आपको पता लगेगा कि काफी लोगों की ना स्किन साथ साथ चलने लगेगी आपके ब्रश के साथ. फॉर इंस्टेंस, मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ और अंदर आ रही हूँ, तो हो सकता है वो स्किन साथ साथ ना घूम घूम के वापस मेरे ब्रश के साथ आगे जा रही हो. ठीक है, लूज है थोड़ी सी स्किन. ऐसी स्किन पर जल्दी रिंकल्स आने लग जाते हैं. जो बोलते हैं ना कि सॉफ्ट स्किन है, यंग एज में अच्छा लगता है वो, बट ओल्ड एज में धीरे धीरे ना मेच्योर होने लग जाती है वो स्किन. मेच्योर स्किन मेकअप इज नॉट अबाउट एज, इट इज अबाउट द स्किन टाइप. Then we have engagement and reception type of look, which are actually like same. It's just about कि किसका outfit कैसा है, उस हिसाब से वो differ करता है. Then मेहंदी मेकअप या हल्दी मेकअप, थोड़ा बहुत आई मेकअप का difference होता है. And it can also differ according to the day or night. Yeah. Then we have the bridal makeup. All right. Which is actually, all these types of heavy makeups are actually, advanced makeups are actually the choice of client कि उसको किस तरह का चाहिए. हो सकता है कोई एंगेजमेंट की ब्राइड अगर ब्राइडल टाइप का मेकअप करा रही हो जो आपने यहाँ सीखा है, तो इट्स नॉट रॉन्ग.
नॉर यू कैन चार्ज हर एक्स्ट्रा फॉर दैट, बिकॉज अगेन इन सब के चार्जेस ज़्यादा ही होते हैं एनीवे। तो चाहे कोई ब्राइड है, सपोज करो फॉर इंस्टेंस यू गेट अ महाराष्ट्रियन ब्राइड, उनके ऊपर हम कलरफुल आइज कर देते हैं विच आर एक्चुअली फॉर हल्दी और मेहंदी टाइप ऑफ लुक, बट यू कैन नॉट से कि मैं ये नहीं करूंगी या मैं इसके चार्जेस एक्स्ट्रा लूंगी या कम कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वॉट एवर द क्लाइंट इज डिमांडिंग यू हैव टू गिव दैट। बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज बताऊं सिंपल भाषा में, इनमें इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट आउटफिट्स, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। उन आउटफिट्स के चक्कर में एंड फंक्शंस का जो डिफरेंस होता है उसके चक्कर में लोग अपना प्राइस चेंज कर देते हैं। दीज आर लाइक मेकअप आर्टिस्ट ट्रिक्स यू कैन से, ठीक है। अदरवाइज मैं किसी को पार्टी मेकअप भी दूंगी तो वही प्रोडक्ट्स होंगे जो इस पे ब्राइडल पे होंगे, बस पार्टी मेकअप 5,000 का कर देते हैं और ब्राइडल 50,000 का कर देते हैं, प्रोडक्ट भी वही यूज होने होते हैं, ठीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस कि आप किस तरह से प्रोडक्ट चूज कर रहे हो। काफी बार आप चेंजेस भी कर सकते हो प्रोडक्ट चूज करने में, ऑलराइट।